हमने डिविडेंड डिसीजन में शुरू का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, ये सारा कुछ हमारा हो चुका है, हम आगे जा रहे हैं। हमने पे आउट पॉलिसीज कल डिस्कस कर ली थी, दो इसमें थी, एक कांस्टेंट और एक स्टेबल। कांस्टेंट वाज व्हाट? कांस्टेंट वाज व्हाट? कांस्टेंट वाज सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी पेड फॉर सर्टेन ईयर्स। ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर वही होगा, बट इट कैन इंक्रीज ऑल्सो, then that will continue again for certain years, then it may increase, then again it's going to continue for certain years. फिर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की बात करें तो इसमें एक्चुअली तो परसेंटेज रहता है वो सेम रहता है ऑलमोस्ट। तो अगर 50% पे आउट रेशियो तो नाउ दैट्स गोइंग टू बी 50% एवरी ईयर, 20% तो 20% एवरी ईयर। है मेरा बच्चा, थैंक यू खुशबू। चलो आइए इधर। तो ये हमने हेडिंग डाली थी डिविडेंड डिसीजन मॉडल्स की थ्योरी। कितनी थ्योरी है? 1 2 3 4, 4 ऑफ देम आर देयर। वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट वन व्हिच इज लिंटर्स मॉडल। लिंटर्स मॉडल हेडिंग डाल दो, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में फटाफट से। अगर किसी की कोई क्लास पीछे की मिस हुई है तो मुझे लगता है कि अराउंड 3 पेजेस मतलब 6 साइड्स छोड़ दो मैक्सिमम। 3 पेजेस मतलब 6 साइड्स। वही बात है खुशी, द शो मस्ट गो ऑन। लोग चले जाते हैं, जिंदगी नहीं रुकती। जिंदगी ऐसी है, किसी के लिए नहीं रुकती। तो जब हम जीवित हैं तो हमें ये इंश्योर करना है दैट वी आर गिविंग आवर बेस्ट शॉट एवरी डे। इफ यू कैन नॉट गिव योर 100%, गिव एटलीस्ट योर 50%। एंड द डे यू आर ऑल फाइन, देन मेक इट 100 प्लस। 200% परफॉर्मेंस दे दो, बैलेंस आउट हो जाता है जी। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे लिंटर्स मॉडल। लिंटर्स मॉडल, उसमें आप नोट करना स्टार्ट करो। लिंटर्स मॉडल हैज गॉट टू पैरामीटर्स। लिंटर्स मॉडल हैज गॉट टू पैरामीटर्स। लिंटर्स मॉडल हैज गॉट टू पैरामीटर्स। पहला, द टारगेट पे आउट रेशो। द टारगेट पे आउट रेशो। द टारगेट पे आउट रेशो। और दूसरा, द स्प्रेड एट विच करंट डिविडेंड्स adjust to the target. The spread at which current dividends adjust to the target. The spread at which current dividends adjust to the target. Okay, लिखेंगे आगे। John Linter based his model on a series of interviews. John Linter based his model on a series of interviews. John Linter based his model on a series of interviews which he conducted with corporate managers in the mid 1950s. Which he conducted with corporate managers in the mid 1950s. Which he conducted with corporate managers in the mid 1950s. मैं आपको इकट्ठा एक साथ समझाऊंगी, अभी पहले आप नोट करते जाओ चीजों को। In the mid 1950s. John Linter based his model on a series of interviews which he conducted with corporate managers in the mid 1950s. चलिए आगे लिखेंगे आप assumptions. Assumptions, इनका जो मॉडल है इसके क्या assumptions हैं? पहला, number 1, firms have long-term dividend payout ratio. Firms have long-term dividend payout ratio. Firms have a long-term dividend payout ratio. Full stop करके आगे लिखो, they maintain a fixed dividend payout over long term. They maintain fixed dividend payout ratio over a long term. They maintain a fixed dividend payout over a long term. Full stop करके आगे लिखो, mature companies with stable earning, you know this. Mature companies जो होते हैं उनकी जो earning है वो stabilize हो चुकी होती है. It doesn't grow. They have already reached the top.
तो mature company with stable earning may have high payouts, may have high payouts. They will be interested in distributing more dividend. They'll be interested in distributing more dividend. Why? ये लिखने के बाद मुझे why बताना कि why is it like that. Mature companies with stable earnings have high payouts. That means they'll be distributing more dividend. Why? You know the answer. We have already discussed it. You know the answer. No, it's not about investor expectation. That's the wrong answer. Why mature companies distribute more dividend? No, it's not about market trend also. That's the right answer. Good, Palak. They don't have any more investment opportunities. They are already mature company. They have already covered so much of market. They don't have such a good investment opportunity now. जो जो करना था सब कर चुके. अब क्या करेंगे? और जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी कोई इतना अच्छा कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है. So they don't have that good option. इसीलिए they believe that let's distribute dividend and make our shareholders happy. Yes, Himanshi, good. आगे, and growth companies usually have low payouts. Growth companies usually have low payouts. Growth companies usually have low payouts. The question is why? Why do they have low payouts? जवाब दीजिए. Because they have more investment opportunity. They are growth companies. They are investing in new ventures, so they have a lot of options available. So why will they distribute in the form of dividend? They will retain more. Okay. Chalo, come to the second one. Very good. Very nice. Number 2, managers are more concerned with changes in dividends. Managers are more concerned with changes in dividends. Managers are more concerned with changes in dividends than the absolute amount of dividend. Then the absolute amount of dividend. Then the absolute amount of dividend. यहाँ पे ऐड कर देना शब्द और percentage change in dividends than the absolute amount of dividends. Okay. Point number 3. Dividend changes follow changes in long run sustainable earning. Dividend changes follow changes in long run sustainable earning. Dividend changes follow changes in long run sustainable earning. And number 4, managers are reluctant. Managers are reluctant to affect dividend changes that may have to be reversed. Managers are reluctant to affect dividend changes that may have to be reversed. That may have to be reversed. Managers are reluctant to affect dividend changes that may have to be reversed. Done? बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए. हाईलाइट फटाफट कर लीजिए. Do it quickly. First point is firms have. क्या वापस बताऊं? ये पॉइंट बताना है वापस क्या? मैच्योर कंपनी वाला ये बताऊं मैं वापस? ये तो हम पिछली क्लास से डिस्कस करते चले आ रहे हैं. ये नहीं डिस्कस किया था अपन ने. ये वही सेम बात वहां लिखी है. वो तो मैंने रिपीट करा दी, वो अलग बात है.
Mature companies का मतलब they have reached the top already. Now they have already invested in all possible ventures, all possible places. तो अब क्या इनके पास और इन्वेस्टमेंट कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, तो उनकी कमाई जो होती है वो उसको डिविडेंड में बांटने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छा ऑप्शन तो है नहीं। जबकि ग्रोथ कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, so they are not interested in distributing in the form of dividend, rather they retain and they invested wherever they find good opportunity. हाँ होता है, बिल्कुल होता है। अभी हम वही चीज आगे पढ़ने वाले हैं परिधि। आगे आगे इसके बाद वही आनी है। ये हो गया आप लोग का नोट सबका। अब आप इसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, और फॉर्मूला लिखो D1 इज इक्वल टू, मतलब डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज इक्वल टू D0, that is dividend paid in the previous year. Prince, you want to ask something? D1 is equal to D0 plus D0 plus ब्रैकेट बनाओ, मेक अ स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर एक ब्रैकेट बनाओ, उसमें लिखो ईपीएस इनटू टारगेट पे आउट, ईपीएस इनटू, ठीक है कर दो प्रिंसी, चलेगा। ईपीएस इनटू टारगेट पे आउट, ये पूरा आ रहा है अंदर ब्रैकेट में, माइनस D0, माइनस D0, then square bracket close into AF, which is adjustment factor, into AF, into AF। अब आप हर एक को का लिखो कि क्या है क्या चीज। D1 is what? D1 is what? D1 is dividend for the current year. D0 is what? Dividend for previous year. EPS is what? Earning per share. Earning per share. Earning per share. Next, target payout is what? It is payout ratio या पे आउट परसेंट, कितना परसेंट आप बांटने को तैयार हो, 10%, 20%, 50%, 100%, वटेवर। फिर D0 वही वाली बात हो गई, डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। और AF इज व्हाट? AF इज एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर। फटाफट से एवरीबॉडी शुड राइट इट। आई थिंक दैट्स डन। चलिए, अब ये जो लिंटर भाई हैं, इन पे सबसे पहले तो एग्जाम वाइज कहूँ मैं तो ये इतना कोई रेलेवेंस नहीं रखते, लेकिन हाँ अभी का जो मॉक टेस्ट पेपर आया है, उस मॉक टेस्ट पेपर के अंदर इसके ऊपर मेरे ख्याल से 3 या 4 मार्क्स के आसपास का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इतना ही दिया है जितना अपन ऑलरेडी बच्चे कवर करके चलते हैं ऑलरेडी। अब ये क्या कह रहे हैं, लिंटर ने जो फॉर्मूला बनाया है वो किस पर बेस्ड है? It's actually based on series of interviews that he took. So he met lot of managers. He met lot of corporate managers and he asked them, he questioned them कि जब आप डिविडेंड प्लान करते हो डिस्ट्रीब्यूट करने का या डिविडेंड अनाउंस करते हो, तो मतलब वो किस चीज पर बेस्ड होता है, व्हाट इज इट बेस्ड ऑन? तो बहुत सारे लोगों का जो रिस्पॉन्स आया, इस आदमी ने, लिंटर ने, उन रिस्पॉन्सेस को अपने पास किया नोट। किसने? जॉन लिंटर ने। he interviewed, he questioned lot of corporate managers and he asked them that what do you think is the basis
जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्या माइंडसेट रहता है, किस हिसाब से आप अंदाज़न अपना डिविडेंड डिसाइड करते हो कि हम इतना डिविडेंड देने वाले हैं। तो ये स्टडी ही डिड इन द ईयर 1950s के अंदर ही डिड दैट। अब इसके अंदर जब हम इस फॉर्मूले को देखते हैं, तो इसको पहले आप समझ लें, फिर हम बाकी थ्योरी पार्ट पे जाते हैं। सबसे पहले इनका कहना है D0। D0 मतलब हमने पिछले साल लास्ट ईयर कितना डिविडेंड दिया था, तो ये आ गया। उसके बाद ईपीएस इनटू टारगेट पे आउट। आपका एक अंदाजा होता है कि यार हमें हर साल 40% डिविडेंड देना है या हमें हर साल 30% डिविडेंड देना है। तो आपका जो भी वो परसेंटेज है, वो आपने किया कि आपकी कमाई इतनी हुई, उसका इतना प्रतिशत आपको क्या देना है, डिविडेंड देना है। तो वो आपका कुछ निकलेगा। अभी अपन कुछ वैल्यूज ले लें, सपोजिंग पिछले साल जो डिविडेंड बांटा वो 10 रुपए था। आपका अर्निंग पर शेयर इस साल जो है वो 25 है। आपका जो टारगेट पे आउट होता है, आप 50% के आसपास डिविडेंड बांटने में इंटरेस्टेड होते हो, तो इसका मतलब आता है कि आप 12.5 रुपए का डिविडेंड देना चाहोगे, जो कि पिछले बार के डिविडेंड कितना था, 10, उससे कितना ऊपर है, 2.5 रुपए ऊपर है। तो ये जो ये पार्ट है, ये क्या बता रहा है कि पिछले साल का जो डिविडेंड था उससे कितना ऊपर जा रहा है, उससे कितना ऊपर जा रहा है वो पर्टिकुलर पे आउट रेशियो रखने से। अब आता है बात एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर, ये जो आपका 2.5 जा रहा है, क्या आप इतना पूरा एक्स्ट्रा देने चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो उसके आसपास, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब लाइक वी आर रेडी टू पे 90% of it, we are ready to pay 95% of it, or we are ready to pay a little more, 110% of it। तो ये एक रैंडम वैल्यू है, एडजस्टमेंट फैक्टर जिससे कहते हैं कि हम पिछले साल के कंपैरिजन में हम चाहते हैं कि या 2% ऊपर हो जाए, या 1% ऊपर हो जाए, या 2% नीचे हो जाए, या 5% नीचे हो जाए। तो दिस इज दैट पर्टिकुलर फैक्टर। अब दो चार यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, फिर हम आगे जाएंगे। मैं कहूँ आपसे फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल का डिविडेंड था 2 रुपए, तो 2 रुपए तो था ही। ईपीएस है हमारा 8, ठीक है। हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है सपोजिंग 30%। तो 8 का 30% कितना निकल के आएगा आपका, 2.4। तो जो पिछले साल दे रहे थे वो कितना था, 2। तो ये कितना ज्यादा निकल के आ रहा है, 0.4 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, ये कंपनी डिसाइड करती है कि जितना ये हमारा पे आउट रेशियो की वजह से एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, हम उतना पूरा देना चाह रहे हैं, या उससे थोड़ा बहुत कम, या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा। अब अगर इन्होंने एडजस्टमेंट फैक्टर 1 दिया है, तो 1 का मतलब बिल्कुल हम उतना पूरा देने को तैयार हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका 2.4 का डिविडेंड इस साल का निकल गया। हम बात करें एडजस्टमेंट फैक्टर 0.9 है। 0.9 का मतलब क्या होता है, वी आर गोइंग टू गिव लिटिल लेस, लिटिल लेस। तो अब आप इसको देखिए, पिछले साल का डिविडेंड 2 था, आपका अर्निंग थी 8 रुपए की, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% था, वैसे आपको 2.4 देना था, पिछले साल आपने 2 दिया था, तो 0.4 हो रहा है। लेकिन हम 0.4 एक्स्ट्रा नहीं देना चाह रहे हैं, हम 0.9 उसका देना चाह रहे हैं, मतलब 90% के आसपास। तो आपके 0.4 का 0.9 हो गया, तो ये आपने किया, तो 2.36 के आसपास का हम डिविडेंड देना चाह रहे हैं। तो जब कभी भी डिविडेंड दिया जाता है, तो इस आदमी ने ये असेसमेंट लगाया कि ऐसा नहीं होता ये कोई एक एक्यूरेट वैल्यू हो या एक कोई एक्यूरेट परसेंट हो, ये दो बातों पर बेस्ड होता है। बात नंबर एक, टारगेट पे आउट रेशियो, कितना परसेंट आप डिविडेंड बांटने को तैयार हो, 20%, 30%, 50%, 100%, क्या। और दूसरा ये बेस्ड होता है किसके ऊपर, पढ़िए, द स्प्रेड एट विच करंट डिविडेंड एडजस्ट टू द टारगेट। मतलब बेसिकली आपका जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, वो आप कितना रखना चाह रहे हो, बिल्कुल उतना ही परसेंट देना चाह रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम देना चाह रहे हो। तो ये दो बातों पर इनका फॉर्मूला बेस्ड है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है, एक बार को अगर मैं लिखूं तो पिछले साल का डिविडेंड एक बार, इस साल की कमाई दूसरी बार, कितना परसेंट देना चाह रहे हो, पे आउट रेशियो, पिछले साल का जो था उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, इस पे क्या लगा देना है, एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, फिर लिख रही हूँ मैं, आप सब दिमाग चलाइएगा अपना। पिछले साल का डिविडेंड कितना था, इस साल की कमाई कितनी है, उसका कितना परसेंट देना चाह रहा है, तो पिछले साल का कितना था डिविडेंड, ऐसा करके एडजस्टमेंट फैक्टर लगा सकते हैं। दैट्स इट, गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलिए, अभी इनके जरा आप अजम्पशंस पढ़िए। अब अजम्पशंस निकल के आ रहे हैं कि फर्म्स हैव लॉन्ग डिविडेंड पे आउट रेशियो। लॉन्ग टर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या है, गौर से सुनना। एक बार अगर फर्म डिसाइड कर लेती है कि हम अप्रोक्सीमेटली 20% का डिविडेंड रखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा एक साल 20 रख लिया, अगले साल 50 रख लिया, अगले साल 80 रख लिया, फिर 10 रख दिया, फिर 30 रख दिया। ये जो पे आउट रेशियो डिसाइड किया जाता है कि हमें इतना परसेंट रखना है, ये ऑन एन एवरेज कुछ सालों तक उतना परसेंट उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है।
बिकॉज अगर वो परसेंटेज पूरे टाइम फ्लक्चुएट होता रहेगा तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे हम। तो अगर शेयर होल्डर्स को एक क्लैरिटी हो, एक कॉन्फिडेंस हो कि यार ये लोग हर साल अप्रोक्सीमेटली 40% तो डिविडेंड बांटते हैं, तो स्टेबिलिटी आने लगती है कहीं ना कहीं आपके प्राइसेस में। सीधे बैठेंगे सब लोग, सिट स्ट्रेट। आ गई मेरी बात समझ में, मैंने क्या बात बोली? तो क्या ऐसा होगा कि हर साल पे आउट का परसेंटेज चेंज होगा? द आंसर इज नो। हर साल चेंज नहीं होगा, एक बार एक परसेंटेज डिसाइड करते हैं और उस परसेंटेज को सर्टेन ईयर तक कंटिन्यू करने का काम है। ये पहली बात है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मैनेजर्स आर मोर कंसर्न्ड विद परसेंटेज चेंज इन डिविडेंड देन द एब्सोल्यूट अमाउंट। पिछले साल 2 रुपए डिविडेंड था और अब 3 हो जाए, इससे चिंता नहीं होती मैनेजर्स को। पिछले साल 10 रुपए था, इस साल 15 हो जाए, मैनेजर्स को इससे चिंता नहीं होती। उन्हें चिंता होती है चेंज इन परसेंटेज मेजरली ना हो। अगर पिछले साल 20 था तो इस बार भी 20 के आस पास ही होना चाहिए। अमाउंट वाइज वो बढ़ घट जाए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। व्हाट दे आर मेनली बॉदर्ड अबाउट इज द परसेंटेज, बिकॉज वही मैंने जो आपको मेंशन करी बात, स्टेबिलिटी मार्केट में होना बहुत जरूरी है कि ये लोग हर साल अपनी कमाई का इतना परसेंटेज बांट के चल रहे होते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात क्या आ रही है? डिविडेंड चेंजेस फॉलो चेंजेस इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अर्निंग। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो कमाई है वो बढ़ गई है, और ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं बढ़ी है, सस्टेनेबल अर्निंग है कि अब ये कमाई हमारी 50,000 से हर साल के लिए तो बढ़ी गई है, या हमारी कमाई हर साल के लिए 5 लाख से तो बढ़ी गई है, इफ देयर इज अ काइंड ऑफ सस्टेनेबल अर्निंग के अंदर एनहांसमेंट, तो आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हो। तो फिर आप डिविडेंड चेंज कर दीजिए। आपको लग रहा है मेरी कमाई पक्का बढ़ गई है, आपने 5% और बढ़ा दिया डिविडेंड, 10% और बढ़ा दिया डिविडेंड। लेकिन ये कब करना सही है? जब आपकी जो कमाई है वो टेम्परेरीली ऊपर नहीं गई है बट परमानेंटली ऊपर चली गई है। आप खुद ये चीज सोचो, कोई कंपनी है, एम्प्लॉयज काम करते हैं, अब क्या हुआ, कंपनी का उस साल बहुत अच्छा वो रहा, क्या प्रॉफिट प्रॉफिट, उन्होंने उठा के बोनस बांट दिया। अब आपने 1 साल बोनस बांट दिया, कंसिडर 2 साल बोनस बांट दिया, फिर ऑल ऑफ अ सडन आप बोलो नहीं नहीं अब तो है नहीं, पैसे अब नहीं बांट पाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा उन लोग की अब आदत हो गई है? तो एक बार किसी को ये आदत डेवलप करा दो कि हम तुम्हें देंगे और फिर ना दो, तो वो आदमी को हर्ट कर जाता है। तो यार यही एग्जैक्टली बात बोली है कि आप अपने डिविडेंड का परसेंटेज तभी बढ़ाना जब आपको ये बात की क्लैरिटी हो कि आपकी जो कमाई है वो सस्टेनेबली बढ़ गई है, परमानेंटली बढ़ गई है, टेम्पररी नहीं है। अगर एक आधी साल के लिए बढ़ी है तो अपने वो ही पुराने रेट के ऊपर डिविडेंड दो, मत बढ़ाओ डिविडेंड, नहीं तो लोग की आदत लग जाएगी। और चौथी बात क्या बोल रहे हैं? मैनेजर्स आर रिलेक्टेंट टू अफेक्ट डिविडेंड चेंज दैट मे बी रिवर्स्ड। बस उनका यही कहना है कि अभी कमाई बढ़ी, आपको लग रहा है कल को ये कमाई वापस गिर सकती है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो दे विल बी रिलक्टेंट, मतलब दे वोंट बी इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द डिविडेंड, बिकॉज दे नो कि जैसे ही वो रिवर्स होगा तो इट विल ब्रिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इमेज ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। ठीक है? कितनी बातें हो गई अपने पास? 4। पहली बात, डिविडेंड का जो पे आउट का परसेंटेज है वो हर साल चेंज होगा या इट नीड्स टू रिमेन स्टेबल? बताएंगे मुझे फटाफट से, हर साल चेंज होगा या इट नीड्स टू रिमेन स्टेबल? It needs to remain stable. What is the reason? What is the reason? Why should it remain stable? To bring stability in the market, shareholders should not panic. They should not be like, यार ये क्या हो रहा है, किस साल बढ़ जाता है, किस साल कम हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन, है ना? और बताइए, ये बात ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेच्योर कंपनीज की, तो मेच्योर कंपनीज का जो डिविडेंड का अमाउंट होता है ज्यादा होता है कम होता है? पे आउट रेशियो बोलना चाहिए, रादर पे आउट रेशियो ज्यादा होता है या कम होता है? हाई। रीजन बता दो मुझे फटाफट से सभी लोग, क्यों? क्या स्टडी किया हमने, क्यों उनका पे आउट रेशियो ज्यादा होता है? Why they are able to give big dividends, huge dividends? Because they lack good investment opportunities. Whereas if we talk about the growth companies, what is their position? Do they, I mean, distribute a lot of dividend, or they believe in retaining? They believe in retaining. Why do they retain? Because they have a lot of investment opportunities in hand. That is the point. चलिए ये बताइए, अगर आपका डिविडेंड था फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए और 3 से हो जाए 4 रुपए, मैनेजर्स उसको लेके बहुत टेंशन में होंगे क्या? No, they are not much bothered about the absolute change in the value of dividend, but they are bothered about the percentage change. So do they want that the percentage remains almost same every year? Yes. Yes. When are they ready to change that percentage? ये बताइए. When are they ready to change that percentage? When are they ready to change that percentage? When it is a sustainable change, when it is a permanent change. But if they feel that such a change can get reversed in future, then what?
then they won't be interested in changing the percentage, because they know that it is going to bring negative image, negative uh, impact on the image of the company in the coming years. तो वो नहीं चाहेंगे ऐसा होना। फॉर्मूला आपको याद हो गया? क्या फॉर्मूला था? कॉपी में मत देखो, सोचो जरा सब लोग, एवरीबॉडी हैज टू थिंक, थोड़ा सा दिमाग में जोर। डी जीरो था, उसके बाद इस साल की कमाई ईपीएस, उसके बाद कितना परसेंटेज हमें बांटना है डिविडेंड वो, माइनस पिछले साल कितना दिया था, तो कितना वैल्यू वाइज बढ़ रहा है। तो आप उसका क्या करोगे, एक परसेंटेज मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर लगा लोगे, 1 रखना है या 1 के ऊपर रखना है या 1 के थोड़ा सा नीचे रखना है। ठीक है, अब हम लिख के इसको कर रहे हैं एग्जाम्पल को, ताकि आपकी क्लैरिटी थोड़ी बढ़े। आप आइए अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, और एक एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट रजिस्टर में हम कर लेंगे। लिखो आप एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1, D0 is 2 रुपए, D0 is 2 rupees. ठीक है गुची। EPS for year 1 is 8. EPS for year 1 is 8. EPS for year 1 is 8. Then payout ratio is 30%. Payout ratio is 30%. आगे adjustment factor 1. Adjustment factor 1. अगले में लिखो आप adjustment factor 0.9. Adjustment factor 0.9. Then adjustment factor 1.05. 1.05. Find D1 in all the above cases. Find D1 in all the above cases. चलो फटाफट से निकालो। Case 1, D1 is equal to D0 plus EPS into payout ratio minus D0 into adjustment factor। अब हमारे पास D0 है 2 plus EPS is 8, payout ratio is 30% minus D0 is 2 and the adjustment factor is 1। सॉल्व करिए। 2 प्लस, गलत सॉल्व किया है परिधि में। आंसर इज 2.4। 2.4। 2.4। ठीक है, अभी आप इसको कंटिन्यू करो अगले 2 केसेस के लिए, फिर जिन भी लोगों ने 1-2 कुछ डाउट पूछे हैं मैं वो क्लियर करूंगी। केस नंबर 2, केस नंबर 2, adjustment factor is 0.9। Nandini is already done with it, very good beta। D1 is equal to D0 plus यहाँ गया हमारा EPS into परसेंटेज पेआउट का माइनस D0 into एडजस्टमेंट फैक्टर। हिमांशी और इसका आंसर में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। D0 was 2 plus earning per share was how much? 8 into 30% minus 2 into 0.9। The answer is 2.36। 2.36।
डन। चलिए कम टू द थर्ड वन, थर्ड केस, केस 3, 1.05 इसमें। Is it coming 2.42? 2.42, 2.42। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो जा रहा है, पहले वाले के अंदर आप अगर देखें तो एडजस्टमेंट फैक्टर वाज हाउ मच, इट वाज 1। व्हेन द एडजस्टमेंट फैक्टर वाज 1, आप चेक करो 24 टाइप करो कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 8% निकालो। 24 मतलब 2.4 बाय 8% कितना आ रहा है, 30%। मतलब जितना पे आउट रेशियो था उतना ही उतना ही पूरा बांट दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। अभी जब तुम्हारा एडजस्टमेंट फैक्टर 0.9 आ रहा है, इस बात का मतलब थोड़ा सा कम देंगे। 30% होता है पे आउट रेशियो, लेकिन थोड़ा सा कम देंगे। अब आप करो कैलकुलेटर पे 2.36 बाय 8 का परसेंट, आर यू गेटिंग 29.5%। तो इसका मतलब ये आप गिवन लिटिल लेस, 30 था पे आउट रेशियो लेकिन उससे थोड़ा सा कम दिया है। अगला 1.05 आ रहा है, तो 2.42 डिवाइड बाय 8% दबाओ, कितना आ रहा है, आर यू गेटिंग 30.25%। मतलब जितना पे आउट रेशियो बैठ रहा था उससे थोड़ा सा ज्यादा दिया है। तो ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, ये क्या बता रहे होते हैं कि जितना आपका पे आउट रेशियो, उससे आप थोड़ा सा ऊपर करना चाह रहे हो, थोड़ा सा नीचे करना चाह रहे हो। ठीक है, डन, ऑल ऑफ यू। चलिए प्रैक्टिस रजिस्टर में आए, प्रैक्टिस रजिस्टर में आ जाओ और ये क्वेश्चन मुझे फटाफट से करके दो। D0 इज 5, D0 इज 5, EPS इज 12। प्रैक्टिस रजिस्टर क्विक क्विक, वहां जाके हेडिंग डाल दी हो चैप्टर की। D0 is 5, EPS is 12, payout ratio is 60%। वंशिका डन, आयुषी डन, क्या बात, गजब, शानदार, गुड स्पीड। Payout ratio 60%, adjustment factor is 0.85। 0.85 का मतलब लिटिल लेस देन देखना निकल के आएगा 60%। फाइंड D1, फाइंड D1। परिधि और तृप्ति का आंसर सेम है। उसके बाद जनप्रीत का अलग है, खुशबू परिधि और तृप्ति सेम है, आयुषी और वंशिका सेम है, हिमांशी और मानसी और नंदिनी वर्दिया और प्राची, इनका भी इन लोग जैसा ही आ रहा है। तो वंशिका का आंसर और आयुषी का एकदम ही अलग है। खुशी का भी आ चुका था और जनप्रीत का भी एकदम ही अलग है। तो आपका जो डिविडेंड है वो कितना है, 5 प्लस आपका अर्निंग पर शेयर है 12, 60% पे आउट है उसमें से, 60%। अब इसमें से क्या कितना दे चुके हैं, 5 तो जा ही रहा था, इनटू 0.85। कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए करना, बेसिक मैथ से। 12 का 60% माइनस 5, सो द आंसर है 6.87, 6.87। वेरी गुड हाइफ, वेरी नाइस। 6.87 इज योर फाइनल आंसर। डन। क्वेश्चन में इतना कोई दम है नहीं, कितने अजम्पशंस है हमारे पास, 4 क्वेश्चन आ सकता है इस पे। वो पूछ सकते हैं बताइए जो जॉन लिंटर हैं वो उनका कैसा मॉडल है, तो आप कह देंगे कि भाई 1950s के अंदर उन्होंने क्या करा, बहुत सारे कॉर्पोरेट मैनेजर्स का इंटरव्यू लिया, उसके बेसिस पर उन्होंने उनका फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला भी मेंशन कर दोगे आप, अजम्पशंस डाल दोगे, और ये जो 2 पैरामीटर्स हैं ये डाल देंगे कि एक तो इनका कोशिश है पे आउट रेशियो सेम हो, और दूसरी चीज उसमें एडजस्टमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। खत्म कहानी, डन। चलिए गेट बैक टू योर कॉन्सेप्ट रजिस्टर, वहां लिखो आप थियोरीज ऑफ डिविडेंड, थियोरीज ऑफ डिविडेंड, थियोरीज ऑफ डिविडेंड।
थियोरीज ऑफ डिविडेंड, दो ब्रांचेस बनाएंगे आप, दो ब्रांचेस। थियोरीज ऑफ डिविडेंड में दो ब्रांचेस, एक लिखोगे इररेलेवेंस थ्योरी और एक लिखोगे रेलेवेंस थ्योरी। एक लिखेंगे आप इररेलेवेंस थ्योरी, अगला लिखोगे रेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरी और रेलेवेंस थ्योरी, ठीक है। इररेलेवेंस थ्योरी में आप लिखो डिविडेंड कितना ही दे दो, इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फर्म। इररेलेवेंस थ्योरी का मतलब डिविडेंड आप कितना ही दे दीजिए, ज्यादा दीजिए कम दीजिए, it will have no असर, no impact on value of firm. It will have no impact, no repercussion on value of firm. दूसरा लिखें कि इस पर्टिकुलर इररेलेवेंस थ्योरी में आएगा क्या, एमएम अप्रोच। एक तो बेचारा ये एमएम, जहां बेतु की चीजें होती हैं वहां एमएम अप्रोच आ जाता है, एमएम अप्रोच। दूसरे पे आइए रेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी नाम से समझ आना चाहिए, आप डिविडेंड जितना दोगे उससे शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। डिविडेंड का असर शेयर प्राइस पे आना है। उसमें दो लिखे आप, एक तो वॉल्टर मॉडल, एक लिखे आप गॉर्डन मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल और दूसरा है गॉर्डन्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, ये मान लो ये चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है, मस्त बढ़िया, और आराम से एग्जाम में इस चैप्टर पे 5-8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, इसमें कुछ है नहीं, चैप्टर खत्म हो जाता है इतने के बाद। एक लिंटर बाय, एक एमएम अप्रोच, एक वॉल्टर, एक गॉर्डन, चार ही है बस, दैट्स इट। लिंटर हम कर चुके हैं, आगे के ये तीन बच रहा है। चैप्टर इतना आराम से आपको, आप कह सकते हो नियरली 6 to 8 मार्क्स दिलवा देता है, तो बढ़िया है। चलो हेडिंग डालो, वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल। और उसमें डालिए आप अजम्पशंस, अजम्पशंस। वॉल्टर मॉडल लिखेंगे आप अजम्पशंस, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो। पहला, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ द फर्म, all investment proposals of the firm are to be financed through retained earning only. All investment proposals of the firm are to be financed through retained earning only. बड़ा ही वाहियात सा assumption है कि जितनी भी नई जगहों पे इन्वेस्ट करोगे वो पैसा बाहर से कहीं से नहीं उठाओगे, जो कमाया है बस वही लगाते हैं। ओनली थ्रू रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जितना डिविडेंड नहीं बांटा, जो पैसा अर्निंग का बच गया बस वही इन्वेस्ट होता है। सो दिस इज फर्स्ट अजम्पशन। अजम्पशन आ जाते हैं कि एग्जाम में, थ्योरी में, हाँ 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में वो अजम्पशन पूछ लेते हैं हमसे। अगला लिखेंगे आप आर, छोटा वाला आर इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न किसका, इन्वेस्टमेंट, जहां भी इन्वेस्ट करा है वहां कितना अपने को रिटर्न मिल रहा है, इट्स बेसिकली और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड केई, एंड केई इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। केई इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर कांस्टेंट। अब आप इसको सोच लो कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहता है, और जहाँ इन्वेस्ट किया है वहां से जो रिटर्न आएगा उसका परसेंट भी सेम रहता है। ये भी थोड़ा वाहियात सा ही है assumption. They keep changing and fluctuating, will not remain same every time, but they are considering it to be constant. तो मार्क करते जाना हाइलाइटर्स के साथ में, आर और के ई आर कॉन्स्टेंट, दे रिमेन सेम, रिटर्न का परसेंटेज और जो कॉस्ट लग रही है आपकी। अगला परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स। परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स हैं, the markets that are existing are what, perfect capital markets। उसमें एरो मार्क करके लिखो इन्वेस्टर्स आर रैशनल, इन्वेस्टर्स आर रैशनल,
Rational, you understand what are rational investors? What is it? Investors are rational. What does that mean? They are logical, they have got sense, they are diligent, समझदार, common sense मौजूद है उनके दिमाग में. तो investors are rational and information is freely available to all. सारी जानकारी मौजूद है उनके पास. Reasonable decision लेते हैं, बिल्कुल. Investors are rational and information is freely available to all. Information is freely available to all. सबको सारी जानकारी मिल जाती है, बट ये तो सच्चाई है नहीं बिल्कुल जीवन की. हमें सारी जानकारी थोड़ी ना कंपनी शेयर कर रही होती. मेनली द इंफॉर्मेशन इज विद द इनसाइडर्स, द एम्प्लॉइज, द डायरेक्टर्स, एंड देन द जो उनके क्लोज नेट में या सर्कल में आ रहे होते हैं. अगला लिखे आप, नो टैक्सेस. सबसे बड़ा झूठ जिंदगी का. नो टैक्सेस. नो टैक्सेस. So it can be considered as if it's like UAE economy, Dubai economy. No taxes. खैर यहाँ भी टैक्स अब आ ही गए. Corporate tax has come, but the percentage is very small. Number 5, no flotation or transaction cost. मतलब there is no brokerage. आप इन्वेस्ट करोगे तो कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, सेल करोगे तो कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा. ये भी सबसे बड़ा झूठ है. आप ये मानिए फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है. कहीं भी आप पैसा लगा रहे हो, they going to charge 0.5%, 1%, certain percentage they do charge. और उसके बाद कह रहे हैं द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ. फर्म चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा. द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ. इनको हमें दिमाग में रखना ही है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इन पे. तो झूठ नंबर 1, क्या बात हमने डिस्कस करी, जो कमाया है उसमें से जो डिविडेंड बांटने के बाद बच रहा है, रिटर्न अर्निंग, उसी को हम इन्वेस्ट करते हैं. दैट्स द ओनली माध्यम, दैट्स द ओनली सोर्स. उसके बाद छोटा r स्टैंड्स फॉर return on investment. KE stands for what? KE stands for cost of capital या cost of equity. Both of them are constant. They do not increase or decrease. There are no taxes in this world. There are no transaction cost or procurement cost available. उसके बाद फर्म की लाइफ परपेचुअल चलती जाएगी, चलती जाएगी. और जो इन्वेस्टर्स हैं, they are rational and they complete information is freely available in the markets. एक बार फटाक से वापस आप पढ़िए. सबसे पहली बात क्या डिस्कस कर ली, जितना कमाते हैं उसमें से जो रिटेन करते हैं, बस दैट इज द ओनली सोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट. दैट इज पॉइंट 1. आर एंड के बोथ ऑफ देम रिमेन व्हाट? कांस्टेंट. परफेक्ट मार्केट्स हैं. और रैशनल रहेगा कौन? कंज्यूमर, कस्टमर जो भी है, इन्वेस्टर. और इंफॉर्मेशन सबके पास मौजूद है. नो टैक्सेस आर देयर, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट देयर, एंड लाइफ ऑफ द फर्म इज परपेचुअल. परपेचुअल. ओके, चल आ जाइए आगे और लिखिए जाके फॉर्मूला. 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 आप लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया है क्या? जी, कैपिटल स्ट्रक्चर निपटा लिया आप लोगों ने? सेल्फ सेल्फ में कुछ तो मैंने टारगेट डेट दी हुई थी. आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज द टारगेट डेट, बट दिया तो था टारगेट, मुझे ऐसा याद है. थोड़ा सा बचा है तो भाई कैपिटल स्ट्रक्चर को आप कंप्लीट कर लो. इट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम. इट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम. अभी आप ये मानो आज ट्यूसडे है, तो आपकी कोशिश ये हो कि यार एटलीस्ट फ्राइडे के आसपास तक तो कंप्लीट हो जाए. फ्राइडे के आसपास कंप्लीट हो जाए. जिनका थोड़ा बचा है, जिनका ज्यादा बचा है, वो संडे तक निपटा लें. बिकॉज इस वीक में ये चैप्टर हो जाएगा हमारा डिविडेंड डिसीजन. इट्स नॉट अ बिग चैप्टर. ठीक है, चलो. तो आपने लिखा फॉर्मूला में मार्केट प्राइस. ये किसके मार्केट प्राइस की बात हो रही है बेटे? शेयर प्राइस. ये कौन सी थ्योरी का पार्ट है? अभी देखा था हमने, ये रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट है. इनका क्या कहना है? डिविडेंड जो भी रखोगे ना, उससे शेयर प्राइस पर असर पड़ेगा. डिविडेंड बढ़ने घटने से शेयर प्राइस पर असर पड़ेगा. तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? शेयर की प्राइस, शेयर प्राइस. ओके, लिंटर में तो हम डिविडेंड की वैल्यू निकाल रहे थे कि कितना डिविडेंड बढ़ेगा. यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? शेयर प्राइस क्या हो जाएगी मार्केट में. चलिए, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डी. डी जो भी डिविडेंड बांट रहे हो, डी प्लस, लिखना जरा ढंग से, डी प्लस
ऊपर लिखो स्मॉल r अपॉन के ई। बच्चे यहाँ तक अपॉन नहीं आना, डी के नीचे तक, आर के नीचे है सिर्फ के ई, लिखना सही से, डी प्लस आर अपॉन के ई। फिर आगे ब्रैकेट ई माइनस डी, ई न्यूमरेटर में है, ये माइनस डी डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में, ई माइनस डी होल अपॉन, अब डी से लेके एंड तक पूरा, होल अपॉन के ई, होल अपॉन के ई, डी प्लस आर बाय के ई, ब्रैकेट ई माइनस डी और होल अपॉन के ई। ओके, रिटर्न। चलिए अब सबसे पहले डी जो है एरो मार्क करो और लिखो ये क्या है, इट्स योर डिविडेंड, दिस इज आवर डिविडेंड, जितना भी डिविडेंड दिया जाएगा, सो दिस इज आवर डिविडेंड। आर इज व्हाट, इट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आप रिटेन कर रहे हो उसको जहां लगा दे रहे हो वहां से कितना प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है, आर इज आरओआई। के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, cost of equity. What is this E standing for? E is earning per share. E is earning per share. E is earning per share. ठीक है, अभी आप करो क्या, यू लीव लाइक अप्रोक्सीमेटली हाफ पेज स्पेस फॉर एक्सप्लेनेशन, आधी पेज की जगह छोड़ दो ताकि मैं आपको ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है ये समझा दूंगी। अभी हम जरा एक आध लिख के एग्जाम्पल करेंगे, लिखो आप एग्जाम्पल, क्योंकि आप एग्जाम्पल कर लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आधे पेज की मात्र जगह छोड़ दो और लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। लिखिए d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3, EPS इज इक्वल टू 5, EPS इज इक्वल टू 5। उसके बाद लिखो आप पहला फर्स्ट करके R इज इक्वल टू 12%, जहां भी इन्वेस्ट किया है वहां पे 12% का रिटर्न मिल रहा है, R इज इक्वल टू 12% और KE इज इक्वल टू 10%, KE इज इक्वल टू 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ द शेयर, फाइंड प्राइस ऑफ द शेयर, फाइंड प्राइस ऑफ द शेयर। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो डिविडेंड आ रहा है, प्लस आर कितना है 12%, तो 12% वुड बी 0.12 अपॉन कॉस्ट कितनी है 10%, 0.1। ओके, देन व्हाट टू डू, अर्निंग जितनी है माइनस जो डिविडेंड दे दिया, अर्निंग कितनी है 5, डिविडेंड कितना दे दिया 3, होल अपॉन, होल अपॉन क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज 0.1। मुझे कोई सोच के ये बता सकता है कि जो ये पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 माइनस 3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट मी सी। फास्ट फास्ट फास्ट, इट इज रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन कितना करा, रिटेन्ड अर्निंग के 2 रुपए रिटेन किए। अब ये बताओ जो रिटेन करोगे इन्वेस्ट तो वही करोगे ना, जो रिटेन करोगे इन्वेस्ट तो वही करोगे, तो आपने 2 रुपए इन्वेस्ट करे और उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है 12%, उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है 12%। अब मैं आपको यहाँ एक चीज समझाना चाह रही हूँ, देखिएगा,
बात ऐसी है, और से सब बच्चे देखना, हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्वेश्चन में कितनी परसेंट दी है? 10%। कितनी दी है? 10%। तो बात ये है कि ये आप इनको 2 रुपए दे देते, आप 2 रुपए दे देते, विच इज अगेंस्ट देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। अब किया क्या, हमने इनको 2 रुपए हाथ से नहीं दिए, और हमने इन 2 रुपए को किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां 12% का रिटर्न मिलेगा। तो आपका जो 10% है वो बराबर है 2 रुपए। तो जब 12% हो जाएगा, मतलब इस पे रिटर्न बढ़ती मिल जाएगा, तो 12 × 2 / 10, तो यही 2 रुपए तुम्हारा कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2.4। यही 2 रुपए क्या बन जाएगा? 2.4। तो देखो, जो हाथ में दिए ना 3, वो तो वही रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। बट जो रिटेन कर लिया ना और इन्वेस्ट कर दिया, तो ये पैसा तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो कंपनी दो तरीके से रिटर्न दे रही है। एक तो दे रही है कंपनी डिविडेंड हाथ से, और दूसरा कंपनी दे रही है वैल्यू में अप्रिसिएशन इंक्रीज, वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी। आया ना? हाथ में पैसा नहीं आया, बट अगर वही पैसा आपका उठा के इन्वेस्ट कर दिया और वहां पे रिटर्न 12% मिल रहा है, तो 2.4। तो ये एक रिटर्न ये हुआ जो हाथ से डिविडेंड मिला, एक वो जो डिविडेंड को आपने ना दिया, रिटेन करके इन्वेस्ट कर दिया। ये दो मिला के टोटल कितना मिल रहा है? 5.4 का रिटर्न। 5.4 का रिटर्न। और बाकी ये नीचे का अपना आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इतना पार्ट मुझे बता दो, समझ में आ गया है क्या? पीछे वैसे मैंने जगह छुड़वाई है एक्सप्लेनेशन के लिए, बट मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया आपको। तो वो जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? रिटेन जो करा, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा बढ़ के इतना हो गया, और जो डिविडेंड हाथ से बांटा वो तो दिया ही। तो दो चीजें मिल गई, तो न्यूमरेटर बता रहा है ओवरऑल रिटर्न आपका। वैल्यू कितनी आ रही है इसका आंसर? 5.4/0.1, 54 रुपीज। तो आपका शेयर हुआ 54 का। आपका शेयर हुआ 54 का। ठीक है, चलिए सेकंड पे आइए। सेकंड पे आइए, फॉर्मूला लिखिए वापस, बार बार फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले क्या चाहिए? जो डिविडेंड बांट रहे हैं, कितना बांट रहे हैं डिविडेंड? 3 रुपए, प्लस ये आर कितना है छोटा? 9%। 9% ले लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 10%। रिटेन्ड अर्निंग 5 - 3, होल अपॉन 0.1। आंसर निकाल के दो मुझे, क्या आ रहा है? Are you getting 48 rupees as the value? Are we getting 48 rupees as the value? यार यहाँ तो तुम ऑब्जर्व करो, ये तो अपनी शेयर प्राइस टंग से गिर गई। ऐसे आरो बनाओ, प्राइस तो गिर गई, शेयर प्राइस गिर गई, शेयर प्राइस गिर गई। पर ऐसा हुआ क्यों? Why has this happened? ऐसा हुआ क्यों? Why has this happened? बताइए मुझे। ऊपर वाले केस में तुम देखो बेटा, आप 10% पर, 10% कॉस्ट पर पैसा ले रहे हो, उसको इन्वेस्ट कर रहे हो 12% पर। तो आपके पास क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कमाई हो रही है। अभी आप नीचे का केस देखो, वेरी गुड नंदिनी भटिया, गुड बेटा। सेकंड केस में देखो, आप पैसा मार्केट से उठा रहे हो, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, और वो पैसे को जिस जगह लगा रहे हो वहां पे 9% रिटर्न मिलता है। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी की बात कि आप 10% पे पैसा लेते हो लोन पे, और जिस जगह लगाते हो वहां से 9% का रिटर्न मिलता है। बैंक से सोच लो फॉर एग्जाम्पल, 10% तुम्हें उनको भरना है, और जहां तुमने उनका पैसा लोन लेके लगाया है वहां से तुम्हें 9% रिटर्न मिलता है। तो सीधा सीधा -1% नीचे गड्ढे में जा रहे हैं, बेवकूफी का काम कर रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात आपको? सभी को? चलिए तीसरा लिखिए, थर्ड। आर इज 10%। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, यू वांट टू राइट, बिल्कुल राइट इट। थर्ड इज 10%। थर्ड इज 10%। तो आपका सबसे पहले डिविडेंड कितना? 3।
प्लस 0.1 ऊपर, 0.1 नीचे, 5 - 3 होल अपॉन 0.1। वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? आर यू गेटिंग? 50 रुपए, 50 रुपए, 50। सिचुएशन को जरा स्टडी करो भाई, जहाँ पे तुम पैसा जो तुमने लगाया है, जहाँ वहां 10% का रिटर्न मिल रहा है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कितनी है? 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कितनी है? 10%। उठाया भी 10% पे, लगाया भी 10% पे, तो वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग एट पार। वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग एट पार। ठीक है, 10 का उठाया, 10 का लगाया, वी आर स्टैंडिंग एट पार। अब इसमें आप कुछ भी कर लो, अभी वो मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी कि आप डिविडेंड ज्यादा बांट दो, कम बांट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ लगा रहे हैं पैसा हमारा बढ़ तो जा नहीं रहा। 2 रुपए है तो वो 2 ही है ना, बढ़ थोड़ी ना रहेगा। दिख रहा है आपको? 2 है तो 2 ही है। इन्वेस्ट करने के बाद भी किसी जगह पे वो 2 ही रह रहा है। तो अगर हम ये ना भी इन्वेस्ट करते, पूरा ही डिविडेंड बांट देते पूरा, तो वही बात होती, तो भी उस पोजीशन पे हम खड़े होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल आप और लिखेंगे और करेंगे। प्रैक्टिस रजिस्टर में एक एग्जाम्पल और लिखेंगे और करेंगे। प्रैक्टिस रजिस्टर में यू विल नंबर इट एज एग्जाम्पल 4। लिखो आप D इज इक्वल टू 2, 2 रुपए। D इज इक्वल टू 2, EPS is 6, EPS is 6, R is 14%, R is 14%। पहले केस में या फिर 12% या फिर 9%। 14%, 12%, 9%। आगे KE is 10%, KE is 10%। फाइंड प्राइस ऑफ शेयर, फाइंड प्राइस ऑफ शेयर। आई होप कि तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया हो, क्योंकि तुम्हें रीजन समझ में आ गया है। बिना देखे तुम फॉर्मूला खुद ही क्यूरेट कर सकते हो। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू, जो हाथ से डिविडेंड दे रहे हैं वो एक बात, उसके बाद कमाया जो वो EPS, डिविडेंड दे दिया तो ये बता रहा है रिटेन, इसको कहीं हमने इन्वेस्ट कर दिया तो R/KE होल अपॉन KE। तो हमारे पास पहले वाले में डिविडेंड 2 रुपए है, जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां 14% पे इन्वेस्ट हो रहा है 0.14, अपॉन कॉस्ट है 0.1, 10%। कमाया कितना है? 6। डिविडेंड में कितने बांट रहे हैं? 2, तो 4 रुपए रिटेन कर रहे हैं, होल अपॉन 0.1। आर यू गेटिंग? 76 एज द आंसर। 76 will be the share price, 76 will be the share price। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे आ जाओ। 12% वाला आंसर बोलो कितना आ रहा है? 68, मे बी 68। तीसरा बोलो कितना आ रहा है? कितना करके थर्ड कितना आ रहा है मुझे निकाल के देना। 56, 56, 56। आप रीजनिंग बताइए, आपको ये समझ आ रहा है ये बहुत ज्यादा क्यों, ये उससे कम, ये सबसे कम क्यों? बताओ पहला वाला हाईएस्ट क्यों आ रहा है? व्हाट इज द रीजन? जितना ये तुम्हारा पैसा तुम लगा रहे हो, रिटेन कर रहे हो 4 रुपए, ये पूरा का पूरा जब इन्वेस्ट हो रहा है तो वो 14% रिटर्न दे रहा है। तो बेटा 10% कॉस्ट लगती है, 14% रिटर्न दे रहा है, सीधे सीधे 4% की बढ़ोतरी हो रही है ऑन द स्पॉट, है ना? 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है। दूसरा देखो, दूसरे में 12% है, तो देते 10 कॉस्ट 12 मिल रहा है, तो मतलब 2% तो कम से कम फिर भी वैल्यू एनहेंसमेंट है। तीसरे में देते 10 मिलता 9 है। लो साहब, ये तो लुट पिट गए,
लुट पिट गया वाली गानी हो गई और क्या आदमी अपनी जेब से 1% दे रहा है, मतलब व्हाट स्टुपिडिटी। शेयर प्राइस तो गिरना तय था। हो गई बात एब्सोल्युटली क्लियर। पक्का फाइन। अब मैं अगर आपसे ये बात पूछूं, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, आप लिखो अपनी कॉपी में इसी के आगे, इफ फॉर केस 1 वी आर required to find highest share price, highest share price, find dividend, find dividend payout ratio। दो बातें इस क्वेश्चन में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, गायब कर दी। इफ फॉर केस 1 वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द हाईएस्ट शेयर प्राइस, जो हद से हद हो सकता है, फाइंड डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब आप और फरमाइएगा मेरी बात को। 6 रुपए हमने कमाए हैं, अगर हम रिटेन करते हैं तो 10 कॉस्ट है, 14 में रिटर्न मिलता है, तो 4% की बढ़ोतरी है। तो आपको सबको ये बात समझ आना चाहिए, अगर ऐसा केस एग्जिस्ट कर रहा है तो इट्स बेटर कि आप डिविडेंड 1 रुपए भी मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, डिविडेंड 1 रुपए भी, पूरा पैसा रिटेन कर लीजिए। बिकॉज जितना ज्यादा आप लगाओगे, हर उसके ऊपर 4-4 आपको बढ़ के मिलेगा। तो बांट के कोई फायदा नहीं है, बांटोगे तो 2 रुपए दो ही होंगे, खर्च हो जाएंगे। बट उसी 2 रुपए का कहीं लगा दोगे तो उस पर 4% बढ़ोतरी हो जाएगी। आप समझे मैंने क्या बोली बात। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले ने कहा फाइंड डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0। 0, कुछ मत बांटो। रिटेन द एंटायर, रिटेन द एंटायर, पूरा पैसा रिटेन कर लो। रिटेन द एंटायर, सारा का सारा पैसा उठा के आप रिटेन कर लीजिए, कुछ मत बांटिए। डन। और ऐसा कब करना चाहिए, जब आर इज ग्रेटर देन के। जब कभी ऐसा हो तो आप पूरा पैसा रिटेन कर लें, कुछ भी ना बांटे। चलिए आप एक बार को करके देखो ये चीज। डिविडेंड ले लो 0, डिविडेंड ले लो क्या 0 प्लस 0.14 बाय 0.10 ब्रैकेट कितना है अपने पास, ईपीएस 6 और डिविडेंड 0 होल अपॉन 0.1। निकालो आंसर। अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं सबके। Are you getting answer as 84 rupees? 84, 84। समझ में आ गई बात आपको। अभी ये कितना दिख रहा था अपने को 76, ये 84 क्यों हो गया। दिमाग लगाओ सारे बच्चे, अगर आपने ये 6 रुपए कमाए और लोगों को बांट दिए तो ये पैसा नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये 6 अगर आपने पूरा रख लिया तो आपकी कॉस्ट 10% है, लेकिन इन्वेस्ट कर रहे हो 14 पे, तो सीधा सीधा 4% की बढ़ोतरी मिलेगी। तो जितना ज्यादा पैसा आप रिटेन करोगे उतनी ज्यादा बढ़ोतरी मिलने वाली। तो इट्स बेटर कि आप पूरा रख लें। चलिए इसी का ऑपोजिट करके देखिए, नीचे लिखिए इफ रिटेंशन रेशियो इज 0, इफ रिटेंशन रेशियो इज 0, कुछ भी नहीं रखा, सब डिविडेंड में बांट दिया, पूरा डिविडेंड में बांट दिया। अब निकालो शेयर प्राइस, अब निकालो शेयर प्राइस। शेयर प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड कितना हो जाएगा, पूरा 6 बढ़ गया डिविडेंड का, प्लस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 0.14 मिल रहा है, कॉस्ट 0.1 है, कमाया कितना 6, डिविडेंड में बांट दिया पूरा 6, होल अपॉन 0.1। बताइए शेयर प्राइस कितनी पहुंच जा रही है।
जो लोग 74 कह रहे हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं। हर कहीं 74। 60 रुपए हो जा रही है शेयर प्राइस। 60 रुपए हो जा रही है शेयर प्राइस, कोई बढ़ोतरी नहीं मिल रही है आपको। ये आप कुछ रिटेन कर ही नहीं रहे कि आपको रिटर्न कुछ मिले एक्स्ट्रा। तो 60 रुपए इज द प्राइस। तो कंक्लूजन क्या निकल के आना चाहिए हमारे पास कि अगर ये सिनेरियो है तो आप पूरा रिटेन कर लें। पूरा रिटेन कर लें, कुछ भी आप मत करिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट। ओके, आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस। अब आपको करना क्या है, आप एक काम करिए, आप कुछ नहीं करिएगा, आप इतना सा पार्ट बस रिवाइज करके आ जाइए। मैं मॉड्यूल में चेक कर लेती हूँ, कोई डायरेक्ट वाले क्वेश्चन दिए होते हैं तो मैं वो आपको दे दूंगी, तो यू कैन जस्ट डू देम, वी कैन डू देम साथ में। हाइपोथेसिस। चलो इस पे आओ, प्रैक्टिस रजिस्टर में रहो अपने। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ो। इलस्ट्रेशन 2, व्हाट इज इट सेइंग? इलस्ट्रेशन नंबर 2, XYZ लिमिटेड अर्न्स 10 रुपए पर शेयर। क्या मतलब है इसका? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस 10 रुपए पर शेयर? जल्दी जल्दी बताइए मुझे चैट में आप। EPS। आगे क्वेश्चन कह रहा है कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10% एंड 12%। बताओ मुझे व्हाट इज दिस 10% एंड व्हाट इज दिस 12%? 10 क्या है? ये आर। आर क्या है फिर? पहला वाला क्या है? 10% इज व्हाट? सिर्फ 10% का जवाब दो। इट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज दिस आर। अब मुझे आप आंखों से देखें और ये बताएं कि 12% रिटर्न मिलेगा अगर इन्वेस्ट करते हैं और कॉस्ट 10% है, तो बेहतर क्या है? पूरा डिविडेंड बांट देना या पूरा रिटेन कर देना? जवाब दो। जितने जवाब अभी तक आए वो सारे ही सही हैं। गुड। दी आंसर इज पूरा रिटेन करना। पूरा रिटेन करना है। रिटेन करोगे तो 2% की सीधे सीधे आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। सीधे सीधे 2% की आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। पढ़ो क्वेश्चन क्या करें। डिटर्मिन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम मतलब जो बेस्ट हो। तो आपका क्या होगा? 0%, नो डिविडेंड पे आउट, एंटायर नीड्स टू बी रिटेन। समझे बात? आ जाओ प्रैक्टिस रजिस्टर में और लिखो जाके। लिखिए आप। सबसे पहले शुरुआत इससे करिए, व्हेन आर इज ग्रेटर देन के। When R is greater than KE, practice register, you can do it. When R is greater than KE, optimum dividend payout ratio should be zero. Optimum dividend payout ratio should be zero. Optimum dividend payout ratio should be zero. कुछ भी नहीं बांटना चाहिए डिविडेंड के नाम पे। चलिए निकाल के दीजिए आप अपना आंसर। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, बताओ मुझे शेयर प्राइस क्या जा रही है। दो से तीन लोग का आंसर आ चुका। गुड। 5 लोग। ओके, व्हाट इज आवर आंसर कमिंग? आर यू गेटिंग 120? अदर्स 120। चल डन। तो ये इतनी सी बात में छुपा हुआ था कि आपको क्लैरिटी हो। आइए आगे। और भी कुछ कहा है क्या इन्होंने? आगे क्या कह रहे हैं? एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट, तो हमने निकाल ही दिया। अच्छा, वो आगे फिर टाइम पास करने लगे अलग अलग पॉइंट लेके। इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाओ।
इलस्ट्रेशन 3 गौर से पढ़ो जरा। Illustration 3. They are mentioning the following figures are collected from the annual report of XYZ Limited. नेट प्रॉफिट है 30 लाख का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 लाख रुपए के। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 3 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, आर है 20%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई है कितना, 16%। पहली बात तो ये दो देख के मुझे ये बता दो कि डिविडेंड कितना बांटना चाहिए, डिविडेंड कितना बांटना चाहिए। आंसर आने में बड़ी देर हो गई। फुल्ली रिटेन करना है, नहीं बांटना, जीरो डिविडेंड देना रहेगा। क्योंकि रिटेन करोगे तो 20% रिटर्न मिलेगा, और नहीं तो गया वो पैसा हाथ से। हाँ या ना? 16 कॉस्ट है, 20% रिटर्न मिलेगा, 4% का मुनाफा चलेगा हमारा, राइट। चलिए, तो इसका मतलब हमारा ये निकल के आ रहा है कि डिविडेंड होना है जीरो। ऑप्टिमम पूछें तो कंप्यूट दी अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो। अच्छा, सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 42। तो उन्होंने शेयर प्राइस बता दी कि हमें 42 चाहिए शेयर प्राइस, तो अपने को डिविडेंड पे आउट रेशियो इसका निकालना है। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट रजिस्टर में कर लो। इट्स नॉट टफ, but we'll do in concept register, and rather I would do it, I'll give it to you. Let me see if you people are able to do it. क्वेश्चन में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बस प्रेफरेंस शेयर्स डाल दिए तो आपको पता है, पहले उन्हें दे देते हैं, जो बचता है वो इक्विटी के हाथ लगता है। स्टेटमेंट ही बना के करो ना, छोटू सा स्टेटमेंट, ताकि आप अपना अर्निंग पर शेयर उसमें निकाल पाओ। पे आउट रेशियो, खुशबू का कहना है 52%, बड़ी जल्दी आ गया आंसर। हिमांशी का कहना है 46.87%। ईपीएस 6, शायद सही होगा, इतना तो आता है तुम लोगों को करते। 100 लाख का 12% तो प्रेफरेंस पे गया, 12 तो 30 लाख में से 12 गए वहां, 18 बचे। 18 लाख डिवाइडेड बाय 3, ईपीएस इज 6, दैट्स करेक्ट।
Nandini is also getting 46.875%, maybe. करूँ सॉल्व में? अटक गए कहीं? अपने पास, सबके पास क्या EPS 6 आ गया? किसी को उसमें प्रॉब्लम हो तो बताए। अब हमें फॉर्मूला, मतलब सॉरी, प्राइस क्या रखना है? दे हैव मेंशन 42, डिविडेंड कितना वो पता नहीं, प्लस रिटर्न कितना परसेंट है? 20, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 16, और यहाँ क्या आता है? अर्निंग माइनस डिविडेंड होल अपॉन 0.16, ये लेफ्ट में गया, 42 इंटू 0.16 is equal to dividend plus 0.2 by 0.16 is 1.25 into 6. I hope everybody understands this much of maths. मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। चेक करना वैल्यू वाइज ये ठीक है। 3.12, 3.12। तो अगर हमें पे आउट रेशियो देखना है तो 3.12 डिविडेंड देना रहेगा, और 6 रुपए EPS है, तो कितना प्रतिशत आ रहा है? 52। एक का भी आंसर सही नहीं था मेरे पास, तो जो आंसर आया वो कुछ अलग ही थे। अच्छा, खुशबू तुम्हारा सही था, 1 मिनट ऊपर करके चेक करती हूँ। सौम्या का सही नहीं था, खुशी का सही नहीं था, नंदिनी वर्दिया का सही नहीं था, खुशबू का सही था। क्या वो शेयर प्राइस गिवन थी? हाँ, डिविडेंड पे आउट नहीं था। नो, वो शेयर प्राइस दी थी ना, डिविडेंड पे आउट तो मांगा था। कंप्यूट अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट so as to keep share price as 42. डन। चलो, क्वेश्चन में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स था नहीं, खैर ठीक है। इसके बाद ये तो गॉर्डन मॉडल पे क्वेश्चंस हैं which we need to do अभी। this is also based on गॉर्डन मॉडल, this is also based on that। आप लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क में, इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क में। इट इज ऑफ दिस पैटर्न ओनली, 5-5 मिनट का क्वेश्चन है। 9 के बाद 11th का फर्स्ट पार्ट, 11th का फर्स्ट पार्ट is your homework। After that, practical question number 2, practical 2। How many questions are done so far? 3। ठीक है।
3 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, तो ये 3 क्वेश्चन आप निपटाएँगे और आगे का हम करते हैं कल कंटिन्यू। ठीक है?